Good morning and welcome, students. I am your social science teacher Namisha. I hope you all are taking good care of yourself. So, before I'm starting this class, beta, again I'm saying that, beta, if you having any query or if you having any doubt, तो first of all you can use a dictionary. अगर आपको बेटा किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में प्रॉब्लम होती है सो यू कैन यूज़ डिक्शनरी एंड इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी तो यूज़ गूगल. आप गूगल पर कुछ भी टाइप करेंगे तो उस वर्ड का मीनिंग आपको एग्जैक्टली पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सो वी आर जस्ट कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 18. द नेम ऑफ द चैप्टर इज गवर्नमेंट इन इंडिया. गवर्नमेंट इन India. Repeat with me. Government in India. In this chapter, beta, we already read about the need of constitution, the central government, Lok Sabha and Rajya Sabha. But in today's class, we are just reading that President of India. So before the starting of President of India, we are just taking a quick recap. Okay? कि हम इसका एक क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा. So what is a constitution? बेटा many students have a issue about it. उन्हें ये नहीं पता constitution क्या है. So बेटा constitution is a written document of India. ये एक written document इंडिया का है जिसमें कि each and everything were written कि how government is work, how government is run, every who having a main power, किसके हाथों में मेन पावर होनी चाहिए, हाउ गवर्नमेंट इज़ वर्क, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, what is the responsibilities of citizens, what is the responsibilities of government, what is the work particular of the work of any department. Each and everything were mentioned in the constitution. So we have already read about it, levels of government. So there is a two type of government. The first one is central government and the another one is state government. Central government beta looking the whole country's issues. Okay, central government क्या करती है, पूरे whole country के यानी कि सभी पूरी countries के central government looks after whole कंट्री, यानी कि पूरी कंट्रीज़ में जितने इश्यूज़ होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है. एंड इफ़ देयर इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट तो बेसिकली बेटा इन द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट इन अ एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा आपको स्टेट गवर्नमेंट. सो टेल रिपीट विद मी, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, विच वन इज़ दिस? द फर्स्ट वन इज़, टेल मी, द फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट and the another one is state government. Got it? So come to the next point. This is the parliament house. We have already read about the central government. Basically beta parliament house is the law making body of a इंडिया और ऑफ अ गवर्नमेंट. यानी कि पार्लियामेंट जितने भी आपके रूल्स होते हैं इंडिया में कि कौन से रूल्स होंगे, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चलेंगी. सो बेसिकली हु मेकिंग द लॉ? Parliament. Who making the law? Tell me. Parliament. Very nice. So where is the parliament located? Tell me. Where is the parliament located? The parliament located in capital of the country and this is New Delhi. न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है. So and tell me one more thing. Tell me that ki any two houses of the parliament, the one is the Lok Sabha and another one is a Rajya Sabha. So Lok Sabha is also called the lower house and who elected member is called a MP. MP means member of parliament. We all the things we all already read it but we can recall this. and कितने टर्म्स के लिए चूज़ होते हैं ये? 5 years के लिए. टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 545. हु इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा? स्पीकर. नाउ कम टू दैट द राज्यसभा. राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस. टर्म इज एट द 6 years. टोटल मेंबर्स इज 250. इन दिस 250, 238 peoples are elected and 12 peoples are nominated by the another field.
नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें नॉमिनेट करता है, और ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, लाइक गेम्स, लाइक पोट्री, गेम्स, कल्चर, म्यूज़िक, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं ये. सो लेट्स स्टार्ट. एंड द हेड ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, टेल मी स्टूडेंट, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ? अभी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? टेल मी. आई विल गिव यू 5 seconds. थिंक अबाउट इट. Who is the vice president of India? Think beta. The name of the vice president of India is Venkaiah Naidu. Who is the vice president of India? Venkaiah Naidu. So now we are just continue the chapter. The president of India. President of India. Tell me beta, सबसे पहले who is the what is the meaning of president? President means head of the country. President means head of the country. The president of India is the supreme authority of India. Supreme मतलब सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी. Like in your house, at your home, who has a supreme authority? आपके घर में supreme authority कौन है? इफ़ यू हैविंग अ ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपके ग्रैंड फादर होंगे. अगर वो नहीं है तो आपके फादर आपके घर के सारे अथॉरिटी हैंडल करते हैं, सारे इश्यूज हैंडल करते हैं. सेम एज दैट बेटा, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री एंड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सुप्रीम मीन्स वेरी हाई. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली. हम उन्हें डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं करते, हम उन्हें डायरेक्टली वोट नहीं देते. तो कैसे चूज़ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सी बेटा, दीज 45 पीपल्स एंड दीज 250 पीपल्स, यानी कि ये 45 पीपल मिलकर और ये 250 पीपल्स मिलकर एंड स्टेट असेंबली के पीपल्स मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज़ करते हैं. ही इज़ इलेक्टेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 5 years. कितने ईयर्स के लिए चूज़ होता है? 5 years. द वाइस प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. वाइस प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन कितना है? 5 years. एंड सेम एज दैट अ प्रेसिडेंट ऑल्सो बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करना है तो हु विल गिव द वोट? द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा. The minimum age to become a president of India is 35. In the last class, most of the students having query कि मैम प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए. सो बेटा, मिनिमम एज, मैक्सिमम तो आपको पता ही है कि कितनी भी हो सकती है, ठीक है. मिनिमम एज है 35. यानी कि अगर कोई पर्सन 35 का है ऑफ इफ़ दे विश और उसको अगर इलेक्शन में खड़ा किया जाए, सो बेसिकली दे वुड गेट अप. अगर उसको वो 35 ईयर्स का होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में खड़ा हो सकता है. हु इज़ दिस बेटा? येस, दिस इज़ आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रेसिडेंट? टेल मी बेटा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आवर प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट, टेल मी बेटा, यू नो हिम? मिस्टर श्री रामनाथ कोविंद. Who is he? Shri Ramnath Kovind, our President of India. Got it, beta? Now we are just talking about formation of central government. अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनती कैसे है? वी आर जस्ट रीडिंग दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को हैंडल करती है. सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनती कैसी है? सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. बेटा, देयर इज़ अ वर्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये एक वर्ड है जो आपके सामने आया. इट इज़ वेरी हैवी वर्ड. एंड व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स द कंट्री इज़ गवर्नड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. यानी कि इंडिया के सिटीजन्स को ये पूरा राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सके.
आई थिंक यू हैव अ इशू, समझ नहीं आया होगा तो समझाते हैं. इफ लाइक जैसे क्लास में मॉनिटर्स के लिए हम लोग इलेक्शन करते ओके, बच्चा किस बच्चे को खड़ा करना चाहते हैं. सो बेसिकली इंडिया हैव अ राइट बी द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. यानी कि इंडिया में पीपल्स को ये पूरा राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सके. इसी को कहा जाता है लोकतंत्र भारत या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम. हैव यू लिसन अबाउट इट? इंडिया हैज़ अ मोस्ट ऑफ द पार्टीज. आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टीज़ के. स्टूडेंट्स टेल मी द एनी फ्यू नेम्स ऑफ द पार्टी. बताइए कुछ पार्टीज़ के नेम बताइए जिनको आपने सुना हो. मे बी यू हैव लिसन दैट बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस. Different political parties send their candidate to conduct election of the लोक सभा. जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं सो डिफरेंट पार्टीज़ अपना हर एक एरिया में डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कॉन्टेक्स्ट में कैंडिडेट्स रखती है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर लिविंग इन बुराड़ी. सो हैव यू आपने देखा होगा आपके फादर या मदर वोट देने जा रहे हैं तो वो देखा होता है बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं. देयर इज़ सम जिनके अलग अलग डिफरेंट चुनाव चिन्ह होते हैं. सो देयर इज़ सम बीजेपी, सम कांग्रेस, सम फ्रॉम आम आदमी पार्टी, सम फ्रॉम बीएसपी, सम फ्रॉम अदर पार्टी. दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन. और उस इलेक्शंस को क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन. एंड लोकल पीपल आर गिविंग द वोट. हम लोग वोट देते हैं और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी विन करती है. लाइक द पॉलिटिकल पार्टी विन द इलेक्शन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजॉरिटी. सो दे आर कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्वाइटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. सो बेटा इन दिस थिंग मैं आपको एक ईजिली समझाती हूँ. For example, in India, there is 100 seats of Lok Sabha. There is 100 seats of लोक सभा. अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो राज्यसभा की कितनी सीट्स, लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? 100. जिसके लिए हमें विन करने के लिए किसी भी पार्टी को कितनी सीट्स चाहिए? 51. टोटल कितनी सीट्स चाहिए विन करने के लिए? 51 सीट्स चाहिए जीतने के लिए. सो for example, BJP have got 57 seats, Aam Aadmi Party got 20 seats, Congress Party got 70 seats and BSP Party got 6 seats. Total हो गई 100. So हमें कितनी सीट्स चाहिए थी? 51. And how many the party have got? 57. So the BJP party will win. BJP की पार्टी जीत जाएगी. And who is the head of the BJP? दैट टाइम मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी. यानी कि जो भी इस पार्टी का लीडर होता है उसे प्रेसिडेंट इनवाइट करता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी हो जाएगा अगर आप समझेंगे तो. अगेन आई एम सेइंग दिस कि देयर इज़ अ टोटल 100. दिस इज़ द एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर मैंने सीट के नाम बताए. दिस इज़ द आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड यू, आपको एक्सप्लेन करने के लिए. सो देयर इज़ 100 सीट्स जिसके लिए विन करने के लिए 51 सीट्स चाहिए. बीजेपी गॉट दिस सीट, सो दिस पार्टी इज़ विन. बट देयर इज़ अनदर क्वेश्चन कि अगर किसी पार्टी को प्रॉपर वोट नहीं मिले, समटाइम ऐसा भी होता है बेटा किसी सिंगल पार्टी को दे डिड नॉट एबल टू विन अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. सो इन दैट केस सम पार्टीज form took a coalition government. So see this, the coalition government. Like total कितनी सीट्स थी? 100. एंड कितनी सीट्स चाहिए मैं जीतने के लिए? 51. If BJP got 40 seats, आम आदमी got 20 seats, कांग्रेस got 30, BSP got 6 and other got 4. So अब क्या होगा? अभी तो किसी को भी सीट्स नहीं मिली. So दिस पार्टी किसी इनमें से किसी और के साथ कॉलिशन कर सकती है. लाइक अगर बीजेपी 51 सीट्स चाहती है तो उसको या तो आम आदमी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ कॉलिशन करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं गठबंधन की सरकार, यानी कि कॉलिशन गवर्नमेंट.
बेटा मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ, टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट. ओके, So the political party of a group of leaders are elect their leader, and the leader is invited by the President of India to form a Council of Minister of Union Cabinet. यानी कि अपनी Council of Minister बनाने के लिए, लाइक जैसे वो बनाएगा एजुकेशन मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर. So the leader of this party is appointed as the Prime Minister of India. The Prime Minister allot different department of a minister. और बेटा एक चीज़ और, प्राइम मिनिस्टर की भी ड्यूरेशन 5 years ही होती है. आफ्टर 5 years दोबारा इलेक्शंस होंगे, दोबारा ये सारी चीज़ें प्रोसेस होगी. गॉट इट बेटा? एंड हु इज़ अवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं. सो वी कैन रेस्ट द क्लास हेयर. बेटा इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो, जिससे कि आई नो दैट कि आपने वीडियो देख ली है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.